used much a lot in the industry. So this one client end loop is not much used because that is DBA work. We don't do this one, but you should be handy with this commit and roll back. And for that we have one condition: you need to initiate the transaction, right? Begin trans. We discussed as earlier. So we will start with the operators today, and in the operators we have different types of operators. Okay, so you might operators is a simple it is very simple concept, guys. It's not a new or it is not something different from what we have in day to day, but you might not heard about this as a operators. So we have basically these as arithmetic operators. Operators means what kind of operations we do. Arithmetic operators. Okay, then we have logical operators. Logical someone from maybe who is coming from IT background, they already have this covered this logical operators and ENTC maybe, or maybe someone just who is from mechanical or other background, they might have also covered these gates and gate and or gates. So that is the part of like logical operators. So logical operators, and then arithmetic operators. Arithmetic is done. So comparison operators. Let's see. We have comparison operators, and then we have operators like special operators. Special operators. Operators. I will cover them in summarize them in one category. So inside special operators we have different operators. We will summarize them in one. Okay, so basically what are the operators? Okay, okay, so let's start with the logical operator for today. That this is interesting, guys. So we will start with the logical operators. So inside the logical operators we have two, and a and d and operator, and we have another or operator. Okay, or operator. Whenever we were studying in the engineering or something, you might have come across this operate gates, right? Gates. Have you heard about these gates? Like we have two gates, AND gate and OR gate, and another one is OR gate, right? Similar concept is implemented in the SQL. So basically, AND is what? So suppose we have two values. Okay, let me take the two values. Suppose we have two values, one and other value is okay. So one, and then we have one here, and here we have zero. Then we have zero here, and here is one. Okay, and we have both sides zero zero. Okay, there are like multiple combinations we can take. So our base should basic understanding should be clear how it operates. Okay, so one and one. Okay, one and zero, zero and one, and both are now zero zero. So basically we will take first both one, and then both zero, then one zero, one zero, other is one. Okay, so what actually or operator does, right? What operation that does? So suppose or is like kind of, you know, addition. Simply if you want to summarize it, it is just kind of addition. Okay, so what happens? Suppose we have two conditions here, right? Here this, suppose this is the column 1. C1 has these values, and C2 C2 from other table has these values, C1 and C2. Okay, suppose we, if you do the OR clause, okay, we will write the OR clause values here, or operate. Okay, and here we will write the AND output. Okay, output of AND and OR. Let me write it as output. Okay, so what happens when
when addition is done, addition means simply sum is done. So don't take it as a 1 plus 1 is equal to 0. That is never, that is 1 plus 1 is never equal to 2 in the binary language. So it is basically binary language. In the binary there is no concept of 2. Okay, there is always 1 or 0, either 1 or 0, either 1 or 0. That is the basic fundamental language of the computer. It doesn't come up to 2. It is just process it's up to 1 and 0. So now this was the like up to the AI and machine learning. Nowadays there is like quantum computing. In what actually happens in the quantum computing? So computer usually processes in one, either 1 or 0 at a time. Okay, but now when quantum computing is coming now, then it will process both values at a one. It will process both values at once. So the processing will be faster. So that is quantum computing itself is a huge phenomena. We will not go into the deep, but simply understand, computer understands in the two words, two things, like that is 1 or 0, either it is 1 or 0. So simply coming to the or operator. So 1 plus 1 is never equal to 1. Sorry, 1 plus 1 is never equal to 2. It is always equal to 1. So it is simply the summation. So why I am saying summation or addition, you will get to know now. So 1 plus 0 is equal to 1 again. 0 plus 1 is equal to 1. Okay, again coming 1. But 0 plus 0 is always equal to 0. So what we are going to discuss here? So focus on the output. Okay, so what output we are getting is, so we can summarize this as, if one of the value is 1, then 1. Okay, see, one of the value is 1, then it is 1. If the one of the value is 1, it is 1. But if both of the values are 0, then it is 0. So basically coming to the one, suppose we assume this as a true and this 0 as a false, then it will become true if one of the condition is true. So let me mark 1 as a 0. Sorry, 1 is equal to true and 0 is equal to false for above cases. Okay, so if there is like one of the condition, if both conditions are true, it is satisfying, it is coming to 1. If one of the condition is true, then it is true, coming true, right? If, see, similarly here 1 is true, so it is coming true, and both the conditions are coming 0, so it is coming 0 means false, it is returning the false. So that is OR operator. Okay, and now coming back to the AND operator. AND operator, suppose AND operator is simply the multiplication. Okay, multiplication or product. Simply if you want to understand, it is a product means multiplication itself. So if you go 1 into 1 is equal to 1, this condition satisfies. Okay, but 1 into 0 is equal to 0, right? 0 into 1 is equal to 0 again, and 0 into 0 by default it will go to the 0. What my point here is, so if we are considering AND operator, so simply it is a kind of multiplication, and it is the basic fundamental behind this and OR. So this is the fundamental behind this. Whenever you are going to work, you will get like lots of scenarios of this and OR condition. So accordingly just understand, and is kind of multiplication, or is kind of addition. So similar, we will have to implement this in the SQL. So assume this one as a true, 0 as a false. Okay, got it? Any doubt until here? I think this is pretty clear, straightforward. It is a summation, and simply if in the OR, if one of the condition is true, then it's
true. Okay, okay, got it. And here, here we should have both the conditions true. If one of the condition is false, false, FALC, then it is false. So in order to remember it for longer time. But the simple example of this 1 and 0, that is very feasible for understanding. Okay, then it is false. Okay, so got this point, or what or does and what and does. Okay, so let's implement this in the SQL. Okay, let me open the SQL. Any doubt until here, guys? It is easy, right? If you have any questions, you can raise the hand. I will take it one by one. If you have any questions. Okay. Yeah. Okay, let's get back to the SQL. It is open. It will take a time. अगर अगर किसी के मन में डाउट है ना कि यार मैं अदर बैकग्राउंड से हूँ या मैं थोड़ा कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाला नहीं हूँ, तो भाई मतलब क्या ही बताए हम खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आए हैं. So never doubt your abilities, never doubt yourself. Just give your 100% guys. So अभी मेरे कुछ दोस्त है, so like जो मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके खुद सपोर्ट रोल में है, और हम कुछ लोग हैं, मतलब मेरे कुछ गिने चुने दोस्त है, मतलब there are lots of, not गिने चुने, there are lots of people who are successfully either they are developers, they are data engineers, they are data scientists. बस यार कि पूरे मतलब नहीं, तहे दिल से करो जो भी करो, एवरीथिंग इज पॉसिबल. मतलब इट इज़ नॉट लाइक huge mountain to climb on, but still just in order to little bit, sometimes we feel like whether I will be able to do it or other. There are lots of doubts in the mind, so just in order to get clear. तो कभी ये मत सोचो कि यार मेरे से होगा या नहीं होगा, भाई तुम थोड़ा अच्छे से करो ना, भाई कुछ भी हो सकता है. मैकेनिकल वाले कर सकते हैं, मतलब कोई भी कर सकता है. तो इट इज़ नॉट अ हार्ड टास्क, हार्ड जॉब. जस्ट यूज योर सेल्फ. ओके, तो ये टाइम लेगा थोड़ा ओपन होने के लिए. इट इज़ ह्यूज एप्लीकेशन. सो दिस वन इज़ क्लियर गाइज. एंड और इसमें ऐसा होता है कि ट्रू, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो तो ये ट्रू, अगर ये नहीं होता होगा तो we will see with the example why it is taking so much of time. So meanwhile, let's cover the other operators as well. If it is taking a lot of time to open the, we will cover the comparison operators. This one is also easy. And operator or operator. Okay, comparison मतलब basically क्या होता है? Have you thought about this? Just give a thought about this. अगर सिंपली ये बोलोगे तो कंपैरिजन हम लोग करते हैं कि भाई ये मेरे से बहुत हाइट में ज़्यादा है, बड़ा है, वेट में ज़्यादा है, इसका पैकेज बहुत ज़्यादा है, मेरे से कम है, मेरे से ज़्यादा है. तो सिंपली दैट इज द सेम प्रिंसिपल हियर. जस्ट यूज ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, ऑपरेटर्स. दे आर मेकिंग इट लाइक look like operators. So but the basic fundamentals behind them is same. So in the comparison operators we have different operators. We have equal to. Okay, अरे भाई ये लेगा क्या फॉर्मूला है. ओके, जस्ट how we can equal to, we will write it as equal to. Okay, ये फॉर्मूला लेके एक से लेना. इक्वल टू, देन लेस than, okay, then greater than, equal to, less than, greater than, and again less than, equal to,
less than equal to भाई खुल गया कि नहीं आज let it open guys. I think how many of you have installed this? If you have not installed, no, get it installed, or maybe tomorrow or the day after tomorrow I will create a video how to install this. But you will get a YouTube video. You can follow that, or I just do the chat GPT. You will get that chat GPT will assist you to SQL Server installation. But still, if you don't want to do, you have another option of this another option of online SQL. So that is the last option we have, but I don't recommend you to do that. I will always recommend to do these things, because we will be doing the all the kind of Python operations as well. So Python, we will be learning Python in some pages. So we will import some data from this SQL Server, and then we will create data pipelines. How ETL I showed we will create a data pipelines. No, that data pipelines I will show you how to import the data from this SQL Server, and then again write to some other sources. How you can import the files in this SQL also. So suppose there is a Excel file, and how you can create this Excel file in the Excel, and you don't want to do the manual things. So that all things we will cover using this tool. So this is huge tool. I am not saying this is a uh, easy tool. This is huge tool, but I will always recommend to have this on your system. Okay, because once you are choosing this field, no, you are choosing this forever, and this is kind of forever thing. So it is better to have this one. Okay, so let's start with the execution hands on. So we covered. So in order to comment in the SQL, so comment क्या होता है एक्चुअली? कमेंट ये होता है कि सपोज तुमने कुछ लिखा है और यू डोंट वांट टू एग्जीक्यूट दैट. सपोज क्या होता है कि, और या फिर आपको किसी को दिखाना है कि इसका यूज क्या है. सपोज एंड ऑपरेटर यहाँ पे अगर देखोगे ना तुम, यहाँ पे कलर इसका कैसे दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है कलर. अगर ये वाले हटा दूँ ना मैं, दो डैश हाइपन्स, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका कलर सेम ही टेक्स्ट है, इसका कलर ये है लाइट ग्रीन है, और इसका कलर रेगुलर है. तो ये बोलोगे कि यार ये ऐसा क्यों है. तो दिस इज कॉल्ड कमेंट इन द एसक्यूएल. This is single line comment. Multiple line comments we have option directly. So on comment, this is the, if you can select this on, you want to select comment this out. So commenting मतलब उसका यूज ये है कि, सो कमेंट को ही कमेंट कर देता हूँ मैं. ओके, कमेंट क्या होता है कि कमेंट इसलिए यूज होता है कि यू डोंट वांट टू execute something. That is the first use of the comment. Other use can be there is another use as well. So if you want to, another one will be, if you want to make it understandable for someone, understandable to someone else. एक्चुअली होता क्या है कि तुम मान लो कि बहुत बड़ी तोहफ हो, और तुमने बहुत बड़ा कोड लिखा, जैसे कि 400 लाइन का कोड लिख दिया तुमने, 200 लाइन का कोड लिख दिया. सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू हैव सम. सपोज आपका इस कंपनी में काम कर रहे हो, अभी कल परसों कभी छोड़ के जाओगे, तो ऐसे नहीं होता है कि तुम्हारा हो गया तो हो गया. तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू मेक इट ऑलवेज हैंडी फॉर अदर्स. सो अभी चैट जीपीटी वगैरह आ गया है, तो इट्स नॉट अ ह्यूज टास्क फॉर एनीवन टू अंडरस्टैंड द कोड. बट पहले ये होता था कि अगर तुम कुछ कोड लिख रहे हो तो इट शुड बी रीडेबल टू समवन, दे शुड हैव अंडरस्टैंड दैट कोड. फॉर दैट पर्पज देयर कम्स द कमेंटिंग ऑल्सो. सो
उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख दूंगा कि ये एंड ऑपरेटर है और ये इसका यूज़ है, तो मतलब इट फिजिबल रहे, इसलिए हम यूज़ करते हैं कि कमेंट। सो एसक्यूएल में कमेंट ऐसे दो हाइपन दोगे ना, तो दैट विल बी मार्क एज अ कमेंट। सो इट इवन इफ आई एग्जीक्यूट दिस, सो इट विल नॉट एग्जीक्यूट। सो इट इज़ बिकॉज इट इज़ कमेंटेड, कमेंट इसलिए यूज होता है। ओके, इफ यू डोंट वांट टू एग्जीक्यूट समथिंग or if you want to make it understandable to someone else, but you don't want it to execute. Okay, I think that is clear. Okay, so end operator, let's start with the end operator. Okay, what tables we have in the Uttareshwar tables. बाद में मैं ये भी लूँगा कि ये व्यूज़ क्या होता है, बाद में फिर ये प्रोग्रामेबिलिटी क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होता है, सर्विस ब्रोकर क्या होता है, बाद में ले लेते हैं। सिक्योरिटी कैसे मैनेज किया, स्टोरेज कैसे, वो बाद में लेते हैं कभी, ये अभी शुरू में थोड़ा हेवी लगेगा। ओके, तो ऑर्डर्स डेटा, इस ऑर्डर्स डेटा में कुछ है क्या, इंक्वायरी। और यहाँ पे एक ऑप्शन भी होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको मतलब इस टेबल का, मैंने उस दिन तो शॉर्टकट दिखा दिया था आपको, लेकिन यहाँ पे अगर इस टेबल का कुछ पूरा देखना है ना, तो यहाँ पे आ जाओगे ना, स्क्रिप्ट टेबल एज और क्रिएट टू। ओके, न्यू क्वेरी एडिटर, यहाँ पे देख लोगे तुम कि ये जो कौन सा टेबल, ऑर्डर्स डेटा टेबल था, तो उसका मैंने उस दिन भी दिखाया था कि किसी टेबल का कुंडली कैसे देखते हैं पूरा एकदम, क्या डेटा टाइप्स था, ये वो था वो था। तो इसके लिए देर इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, तो कि ये टेबल कैसे क्रिएट किया गया है। ओके, सो दिस इज क्रिएट टेबल स्क्रिप्ट फॉर दैट वी कैन, यू कैन राइट क्लिक हियर, देन यहाँ पे आ जाएगा कि स्क्रिप्ट टेबल एज, कि अल्टर करना है या ड्रॉप करना है या फिर इंसर्ट करना है, किसमें अपडेट करना है, डिलीट, दीज आर द ऑल ऑपरेशंस वी डिड, राइट, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दिस। सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फिर ड्रॉप किया, देन अल्टर किया था, ये सारे ऑपरेशन मैंने ले लिए। तो आई डोंट थिंक कि अभी इसमें कोई आपको ये दिक्कत होगी, क्योंकि देख लो यही था क्रिएट टेबल, ये वाला हमने यूज़ किया था। और फिर डेटा टाइप्स भी हमने कवर करे, एन वेर कैर डेट, फिर एन वेर कैर, तो ये हमने फ्लोट भी किया था, डेसिमल भी कवर किया था। तो दिस इज द बेसिक, नाउ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस व्हाट वी आर डिड अर्लियर। सो स्लोली सब समझ में आ जाएगा। तो दिस वॉज द ईजिएस्ट वे टू गो टू दिस स्क्रिप्ट टेबल एज। ओके, उसका अल्टर करना है, ड्रॉप करना है, ट्रंकेट करना है, इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आ जाता है। तो कमिंग बैक टू द एंड ऑपरेटर, सो यहाँ पे कौन से टेबल्स थे, यहाँ पे कौन सा टेबल था, ऑर्डर्स डेटा, ऑर्डर्स डेटा। ओके, सेलेक्ट टॉप 10, इसमें 10 भी नहीं रहेंगे ऑर्डर्स, टॉप 10 स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स डेटा। ओके, सो ऑर्डर्स डेटा से 10 रिकॉर्ड निकाल लेते हैं। ओके, सो हियर this is very good data set actually to understand everything. So if you can see this is how real time data looks. अगर तुम बोलोगे ना कि कैसे होता है रियल टाइम में डेटा, कैसे होता है, ऐसे ही होता है। जैसे ऑर्डर आईडी है, उसका ऑर्डर डेटा है, वो ऑर्डर शिप कब हुआ, वो कस्टमर नेम क्या था, रीजन क्या था, उसका सिटी कौन सा था, कैटेगरी क्या था, ऑफिस सप्लाईज था, प्रोडक्ट आईडी था, जैसे सेल्स था, क्वांटिटी, प्रॉफिट कितना हुआ। दिस इज आई थिंक ये मैंने इसलिए किसी पर्पज़ के लिए डेटा इसमें डाला होगा कि मैं खुद जब प्रैक्टिस कर रहा था तो रियल टाइम डेटा ही एक्चुअली। रियल टाइम मतलब कि कुछ प्रोडक्शन में से डेटा सेट लेके मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिए थे। तो दिस इज एक्चुअली रियल टाइम डेटा, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डेटा इज देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही होता है, जैसे मैंने बोला था कि कुछ ऑर्डर आईडी रहेगा, ऑर्डर डेट रहेगा, शिपिंग डेट रहता, कस्टमर नेम रहता है, कौन से रीजन का ऑर्डर है ये, फिर उसमें से सिटी कौन सी थी, कैटेगरी कौन सी थी, ऑफिस सप्लाईज था, डेंजरस फूड्स रहते, परफ्यूम्स वगैरह कुछ रहते, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज बनते हैं उसमें। उसका प्रोडक्ट आई भी रहता है। सपोज तुम्हारा एक फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया ना, तो उसका प्रोडक्ट आईडी रहता है कि ये शूज़ है, तो ये कौन सा है, नाइकी का शूज़ है क्या, नाइकी का शूज़ में इसको, उसमें भी नाइकी के शूज़ में से 10,000 वैरायटी रहती है नाइकी के शूज़ की, तो उसी हिसाब से उसके प्रोडक्ट के आईडीज बनते हैं। तो उस हिसाब से सब ऐसे ही डेटा रहता है एग्जैक्टली।
उसमें से कितनी क्वांटिटीज थी इस प्रोडक्ट की, तो दैट इज द सेम डेटा. दिस इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ रियल टाइम डेटा गाइस. So in order to understand, okay, select top 10 from the order. So we will go with the AND operator now. Okay, okay, we will go with the AND region and city. Okay, suppose we have both west east, no, so where we have Portland and supplies. Okay, so let's go with the city. Okay, Troy. Select star from the orders data. So star from orders data. Where is the plot? So where is kind of filter. Okay, now we will filter on based on city is equal to Troy. Okay, city is equal to Troy. Now you will get it. So simply एक ही रिकॉर्ड आ जाएगा, यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड आ गया. ओके, ट्रॉय. ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस इज बिट थोड़ा पेचीदा है. अभी मैं एंड ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ. ओके, जैसे मैंने बोला था कि एंड ऑपरेटर यूज करना है. एंड सिटी इज इक्वल टू ट्रॉय. एंड ये मान लेता हूँ कि क्वांटिटी इज इक्वल टू 3. ओके, एंड क्वांटिटी इज इक्वल टू 3. क्या लगता है क्या आएगा आउट, कितने कॉलम्स आएगा आउटपुट में? लेट्स जस्ट सी फर्स्ट अंडरस्टैंड द डेटा फर्स्ट. यहाँ पे सिटी कितने हैं? सिटी ट्रॉय वाले एक ही रिकॉर्ड है. ओके, और क्वांटिटी कितने हैं? 3 है. क्वांटिटी 3 में कितना है? यहाँ पे इसके लिए है, कॉनकॉर्ड के लिए है, हाउस्टन के लिए है, पोर्टलैंड के लिए है. लेकिन ट्रॉय के लिए क्वांटिटी 3 कहीं पे दिख रही क्या? नहीं दिख रही. ओके, सो क्वांटिटी इज 3. तो ये बोलेगा कि चलो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको. तो क्या आ गया? ये बोल रहा है कि यार मेरे पास तो कोई डेटा नहीं आया. क्यों नहीं आया? कि ट्रॉय वाला तो आ गया था, ट्रॉय वाला तो एक आ गया था. लेकिन एंड में क्या बोल रहा है कि ये वाली मान लो कि एक कंडीशन है जो हमने बोला था कि 1 और 0 है. ओके, तो क्वांटिटी इज इक्वल टू 3 ये ट्रू नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मतलब ये इट्स सिंगल. वो देखोगे क्वांटिटी 3 वाले आ जाएंगे, लेकिन कंबाइनली इसमें से अगर देखोगे सिटी इज इक्वल टू ट्रॉय, दिस वन इज इंडिपेंडेंटली अगर देखोगे ना, ये है, ये ट्रू हो रहा है. लेकिन अगर तुम साथ में देखोगे ना, तो साथ में अगर मिलाओगे उसको, तो ये बोल रहा है कि मेरे साथ ये वाला हो नहीं रहा है, कॉम्बिनेशन जम नहीं रहा है. सिटी मेरे पास ट्रॉय है, लेकिन उसके लिए क्वांटिटी 3 नहीं है, तो दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रहे, तो इसलिए मेरे पास डेटा नहीं आ रहा है इसके लिए. अभी मैं यहाँ पे एक कर दूँ, यहाँ पे एक भी डेटा नहीं आया था, क्योंकि उसमें से तो इसके लिए ये ऐसा होता है कि दोनों कंडीशन मैच करनी चाहिए, तब भी मैं लेके आऊँगा. दैट्स व्हाट वी डिस्कस्ड. अभी और कर देता हूँ इसको. यहाँ पे एंड की जगह मैंने जस्ट और किया था. ओके, तो सिंपली यू कैन सी. और यहाँ पे ट्रॉय वाले आ गए. और में क्या था कि कंडीशन क्वांटिटी 3, यहाँ पे क्वांटिटी 3 वाले 2 तो आ गए, लेकिन ये 1 वाला क्यों आ गया? 1 वाला ये बोल रहा था कि मेरे पास यहाँ पे ये भी कंडीशन थी कि दोनों में से जो भी कंडीशन मैच कर रही है वो लेके आओ. दैट इज द पर्पज ऑफ और. अगर दोनों में से एक भी कंडीशन मैच कर रहे, आई नीड बोथ कंडीशन ट्रू टू बी ट्रू. आई नीड बोथ conditions to be true. Okay, this is the whole purpose of this, and that's what we discussed earlier. And now और ऑपरेटर क्या बोलेगा? चलो भाई, मेरे को एक भी सही मिला तो भी चलेगा. और ऑपरेटर, आई नीड one of the conditions to be true. That's what we discussed. Okay, so इसमें से अगर मान लो कि यहाँ पे एंड लिख रहा हूँ मैं, सेम ही है, यहाँ पे एंड लिख रहा हूँ और नीचे लिखता हूँ और. ओके, नाउ यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग. ओके, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं और. तो और क्लॉज में नाउ आई विल एग्जीक्यूट. यहाँ पे देख लो, ये तो इसको मैंने अगर कमेंट नहीं किया होता ना, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ सेलेक्ट करके,
तो वो बोलेगा कि कुछ तो गलत आ रहा है। An expression of non-Boolean type specified in the current context where the condition expected अच्छा है। इसको ये हम बोल रहे हैं कि भाई तू मत एग्जीक्यूट हो, तू मत एग्जीक्यूट हो, फालतू में एरर देगा तू, क्योंकि उसका कुछ सेंस ही नहीं बनता है, दैट इज टेक्स्ट एंड इट डजंट मेक एनी सेंस। ओके, सो यहाँ पे देख लोगे तुम, यहाँ पे दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो जाते हैं ना तभी उसके लिए डेटा आ जाता है। और अभी मैं इसको ये अभी मैं इसको 1 कर देता हूँ। ओके, नाउ वी विल सी क्वांटिटी इज इक्वल टू 1। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा। पहले क्वेरी का आउटपुट कुछ नहीं आया, वो बोल रहा है कि दोनों कंडीशन, मेरे पास ऐसे कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है कि दोनों कंडीशन मैच हो। लेकिन दूसरा इसमें बोल रहा है कि क्वांटिटी जहाँ पे सिटी ट्रॉय भी हो और क्वांटिटी 1 भी हो, हाँ मेरे पास एक है। या फिर तीसरी क्वेरी पे आते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स डेटा वेयर सिटी इज इक्वल टू ट्रॉय, सिटी ट्रॉय वाला आ गया। और बोल रहा है कि क्वांटिटी 3 वाले भी लेके आओ, तो क्वांटिटी 3 वाले भी लेके आए। तो यहाँ पे ये 1 इसलिए आ गया था कि इसमें ट्रॉय भी कंडीशन है, तो ये आ गया था। ओके, अगर ये वाला कंडीशन मैं यहाँ से हटा दूँ ना, क्वांटिटी 3 के कितने आ जाएंगे, ये वाला 1 नहीं आएगा। ओके, वेयर क्वांटिटी इज इक्वल टू 3 यहाँ पे हट जाएगा। देखो तो 1 वाला गया, चल गया। ओके, आई थिंक that is a quite bit of understanding for this. If you spend a lot of time on this steps, it will take too much time, but it should be pretty clear now, right? And operator and or operator. Hello guys, is it clear? अरे बोलो कुछ, अगर सही नहीं लग रहा है तो और डीप में जाते हैं। क्योंकि मेरे को एक दो लोग मेरे को बोले कि थोड़े सर तुम थोड़ा फास्ट सिखाते हो, तो थोड़ा मे भी बोलने का स्पीड फास्ट होगा, लेकिन समझने का स्पीड तो ही रहेगा, क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ सिलेबस टू कवर एज वेल। सो आप जब तक अपने साइड से नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। जस्ट यू विल सी कि यार सर तो कर रहे हैं, उत्तरेश तो कर रहा है, उसको तो दिख रहा है सब सही आ रहा है, और तुम जब करने जाओगे ना तो कुछ नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, एक एक सिंटैक्स मतलब नहीं क्या, ये तो एसक्यूएल है भाई। अगर करना है तो शिद्दत से करो या फिर मत ही करो, क्यों खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, खुद को फॉल्स सिंपैथी दे रहे हो कि मैं कर रहा हूँ। कुछ करना है तो मत करो भाई। मैं अभी बोल रहा हूँ, इट इज़ नॉट अ ईजी, बट इट इज़, अगर मैं बोल रहा हूँ ना ये कर लोगे ना आप भाई, तुम मतलब 15-20 लाख तो कहीं नहीं गए आपके। तो डू करना है तो अच्छे से करो, नहीं तो मत ही करो। मैं आई डोंट वांट टू गिव एनीवन फॉल्स होप, और आप भी खुद को फॉल्स होप मत दो। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू आर डूइंग। तो अच्छे से करना है करो, नहीं करना है तो मत करो। फिर आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर पे। ओके, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट understand I could have given to someone for this and an or operator, because ये तो मैंने इंजीनियरिंग वाला पार्ट भी सिखा दिया था कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। और ये जो गेट्स होते हैं ना, इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता है गेट्स वाला, एंड गेट, और गेट, एक्स और एक्स नॉर, बहुत सारे गेट्स होते हैं, नॉर गेट, बहुत सारे गेट्स होते हैं, बट हमारे लिए 2 ही काफ़ी है। ओके, तो दैट इज़ फॉर द दिस वन। Now we will go back to the comparison operators. Again I am marking it as a comment, comparison operator। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है कि जैसे मान लो आई वांट रिकॉर्ड वेयर प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 1। ओके, जैसे कि सपोज यू वांट सेलेक्ट star from orders data where profit is greater than 1। okay, so we will simply play around this profit। okay, so now let's first query all the data। okay, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे इसका प्रॉफिट 5 रुपये है। जैसे मान लो कि ये रुपीज़ में है, जैसे मान लो इसका 5 है, इसका 0.84 है, इसका माइनस है। तो ये करना है कि तुम्हें नहीं क्या कि जिसका 1 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट हो,
यहाँ पे वी आर यूजिंग द कंपैरिजन ऑपरेटर, विच वन इज फर्स्ट, ग्रेटर देन। ओके, यहाँ पे ये करेंगे ग्रेटर देन, ये बोलेगा कि हाँ ठीक है, एक ही लोग का प्रॉफिट है जो 1 रुपये से ज़्यादा है। कंडीशन माइट वेरी सिचुएशन टू सिचुएशन, आप जब काम करोगे उसके हिसाब से, मतलब किसका सैलरी कम है, किसका ज़्यादा है, किसका कुछ है, किसका ऑर्डर डेट कम इससे कम है, इसका ऑर्डर डेट इससे ज़्यादा है, ऐसे वाले सिनेरियोज बहुत आते हैं, तो उसके हिसाब से करना पड़ता है। या तो फिर प्रॉफिट ग्रेटर देन 1, एक ही आया रिकॉर्ड। ओके, सो सिंपली यहाँ पे कितना है प्रॉफिट, ग्रेटर देन 1, यहाँ पे एक ही आया था, 5 रुपये जिसका प्रॉफिट था वही आ गया। अभी इसको मैं बना देता हूँ कि लेस देन 1। ओके, कंपेरिजन ऑपरेटर में आते हैं दूसरा लेस देन 1, लेस देन, ये आता है लेस देन 1। तो अभी कितने आएंगे, 3 रिकॉर्ड आने चाहिए। ओके, लेट मी एग्जीक्यूट बोथ। तो पहले में तो एक रुपये से ज़्यादा 5.44 आया था, तो दूसरे में लेस देन 1 कितना है, 0.84 आया, -1.93, -3.77, ये भी आ गए। तो दिस इज अनदर कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन। ओके, नाउ वी विल कम टू द ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बोलेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लेके आओ, जहाँ पे एक हो वो भी लेके आओ। यहाँ पे 1 एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्या होता है कि मैं बोलूँ जैसे एक से बढ़िया, एक से बड़ा, एक से बड़ा, इट इज़ नॉट इंक्लूडिंग एज अ 1 ऑल्सो। सो मतलब कि जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना 0.84, यहाँ पे एक रिकॉर्ड है अपने पास 0.84, क्या लगता है 0.84 वाला आ जाएगा क्या इसमें, क्या लगता है? 0.84 वाला भी है अपने पास, एक रिकॉर्ड था, तो दिस इज एक्सक्लूसिव। ओके, एक्सक्लूसिव मतलब वो उसको 0.84 होके भी उसको कंसिडर नहीं कर रहा है, कि ये बोल रहा है कि मैं उससे ज़्यादा, 0.84 से ज़्यादा। और अभी सेम कंडीशन में लिख रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर 0.84 है तो भी चलेगा मेरे को। ओके, तो चलो लेके आया, हाँ चलेगा भाई, चलेगा, ये भी चल गया। तो देन वी विल कम टू द लेस देन इक्वल टू। अभी इसको ग्रेटर देन को सिंपली करते हैं लेस देन, लेस देन इक्वल टू 0.84। अभी कितने आएंगे, 3 आएंगे, यहाँ पे भी 0.84 को कंसिडर कर रहा है। सो दिस कंडीशंस आर एक्सक्लूसिव, these are, if you want to make it inclusive, we have to use this, right, making that condition equal to, so less than or equal to, that is called in उस condition को inclusive करना। so less than equal to, greater than equal to, और फिर क्या हो सकता है, क्या होता है और कैसे कंपेयर करते हैं हम लोग, या तो बड़ा होता है या छोटा होता है उस, हाँ इक्वल टू भी होता है, डायरेक्ट इक्वल टू भी होता है, सीधा बस 0.84 जहाँ पे 0.84 ही है तो वो भी आ जाएगा, इक्वल भी आ गया। अभी हाँ, अभी ये भी आ जाएगा कि वो नॉट इक्वल है, उसके जितना नहीं है। ओके, तो उसको भी कवर कर लेते हैं। ऑर्डर जेट अगर, और बस नॉट इक्वल टू कैसे लिखोगे तुम, नॉट इक्वल टू कैसे लिखोगे, ट्रिकी है ना। तो यहाँ पे आ जाता है जो ये जो 1 होता है ना, 1 का जो बटन होता है अपने कीबोर्ड पे, वहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, Shift+1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0.84, तो इसको एक्सक्लूड कर देगा ये, बाकी 3 तो आ गए, 0.84 के इसको एक्सक्लूड कर दिया। सो दैट इज फॉर नॉट इक्वल टू। और इसको हम अलग तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं अलग तरह से, कैन समवन थॉट अबाउट दिस, कैन समवन गिव थॉट टू दिस, कैसे लिख सकते हैं इसको अलग वे से। ये ऐसे नहीं लिख सकते क्या, उससे छोटा भी नहीं और बड़ा भी नहीं, ये बन जाएगा, इससे काम चल जाएगा।
चल जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज़। सो ये ड्रॉप कर दिया उसको कि या तो फिर ऐसे लिखो को इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू नॉट, एंड इसको ऐसे बोलोगे कि उस ये छोटा भी नहीं और बड़ा भी नहीं, ऐसे ऐसे मतलब नहीं क्या, इसको भी बोल सकते हो कि तुम नॉट। ओके, so that is the all the operators like for this one and operator। so ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा, ये सारे वाले यूज़ होते हैं भाई, सारे वाले यूज़ होते हैं। एंड और तो भाई डेली लगाना पड़ता है कि उस कंडीशन पे हम फिल्टर कर रहे हैं उसको और ज़्यादा कम क्यों, जब जैसे ही ज़्यादा सपोज ऐसे एक कंडीशन पे तुम सर्च करोगे ना डेटा ज़्यादा आ जाएगा, तो फिर कई कई सिचुएशन आ जाते हैं कि इस अकाउंट का डेटा कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो वो बोलेंगे कि यार और एक क्वेरी लगा और एक फिल्टर कंडीशन लगा देते तो उसको कम करके देते हैं। तो सिमिलर ये ऐसे होता है कि एंड कंडीशन रखते हैं फिर डेटा कम आ जाता है, और रखते हैं तो फिर और ज़्यादा आ जाता है। तो दैट इज़ हाउ वी मैनिपुलेट विद द डेटा। तो यहाँ पे सिंपली देखते हैं। ओके, तो एंड कंडीशन रखोगे तो बहुत कम डेटा आएगा, और रखोगे तो भाई मैं दोनों इंक्लूसिव कर लूँगा भाई। तो दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंड और एंड द कंपैरिजन ऑपरेटर। सो डू प्रैक्टिस फ्रॉम योर साइड गाइज, दिस इज यूजफुल एक्चुअली। सो जो कुछ रियल यूजफुल नहीं है, जैसे कि मैंने कल बताया कि ये ग्रांट और रियो हमें यूज़ नहीं होता है, दैट वी आर नॉट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, वी आर इंजीनियर्स। सो रोल बैक और कमिट, दिस इज आवर, वी विल डू दिस ट्रांजैक्शन कंट्रोल। ट्रांजैक्शन बिगिन करेंगे, उसको अगर कमिट करना है तो ही सही लग रहा है तो कमिट करेंगे, अगर सही नहीं लग रहा तो उसको उड़ा देंगे, भाई नहीं हमको नहीं चाहिए तो निकल जाओ ऐसे। तो फिर उसको रोल बैक और कमिट बोलते हैं। तो ग्रांट रिवोक भी हो गया, और फिर ये वाला भी हो गया। तो वी स्टार्टेड टुडे विद द ऑपरेटर्स एंड वी डन विद द एंड ऑपरेटर्स। एंड ऑपरेटर का नहीं क्या, ये वाला फंडा समझ लो कि ये वाला फंडा तुमको कोई नहीं समझाएगा, बट दिस इज वेयर एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क्स अराउंड दिस ओनली। सो इसलिए मैंने नहीं समझाया अच्छे से समझाया कि सॉरी ये इतना अच्छे से मैंने इसलिए समझाया कि एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड दिस ओनली। सो कहीं पे भी जाओगे तो पाइथन जाओ, एसक्यूएल जाओ, जावा जाओ, या फिर और कुछ जावा स्क्रिप्ट जाओ, दुनिया के कोई भी लैंग्वेज लेके आओ, वहाँ पे सिंपल फंडा यही है। तो ये क्लॉज वाला और कंडीशन वाला, तो ये और कंडीशन और यार कंडीशन हर जगह है, हर जगह एक ही है, और फिर हर जगह सेम ही फंडा है। तो इसलिए मैंने थोड़ा डीप डाइव किया उसमें कि तुम समझ सको। ओके, so that is covered I think। ओके, तो देन कुछ एडिशनल किया जाए क्या, आज थोड़ा टाइम बचा है आज, वी हैव 8 मिनट्स स्टिल। लेट मी मार्क इट एज ग्रीन। समझ तो आ गया ना भाई, सबको समझ में तो आ ही गया होगा। अभी इसमें क्या मतलब, जब प्रैक्टिस करोगे तुम कुछ डेटा सेट लेके तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, बट फंडामेंटल दिस इज क्लियर। मैं खुद अभी ये सारे निपटा देता, लेकिन आई डोंट वांट टू मेक लॉट्स ऑफ बर्डन एट अ टाइम। सो इतना ही आज के लिए, इतना ही लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस भी तो करना है। अभी ये वाला तुम प्रैक्टिस करो, अगर किसके पास एसक्यूएल सर्वर नहीं ना, तो अभी यहाँ से जो आगे लगेंगे ना, उसमें तुमको मैनिपुलेशन, जब डेटाबेस लेवल पे मैनिपुलेशन करना है था, ये वाला चल जाएगा, प्रोग्रामिंग वाला एसक्यूएल सर्वर। आज मैं सिखाई देता हूँ वो भी एडिशनल नॉलेज में। ये एसक्यूएल वाला, इसके देख लोगे तो सारे कंपाइलर है इसके, ये प्रोग्रामिंग वाले के। पाइथन वाला है, सी वाला है, जावा वाला है, एचटीएमएल वाला है, ऑनलाइन एसक्यूएल है, सब है इनका सब। आजकल कुछ मतलब करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे कस्टमर्स का टेबल ये है, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, एज। यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर एज इज ग्रेटर देन कितना लिखे थे, 25 अंकल लोग। चले, फर्स्ट नेम एज फ्रॉम द कस्टमर वेयर एज इज ग्रेटर देन 25। तो ये वाले आने जो बेटी है और फिर ये जॉन है, इनका ग्रेटर देन 25, तो ये आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे तो सारे आ रहे हैं, तो सर इसको मैं रन करूँगा, एग्जीक्यूट करिए, 2 ही आ गए। ओके, सो ऐसे जाके तुम प्रैक्टिस करो भाई। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हाँ, मुझे लगता है कि किस के पास थोड़ा
लेस कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप हुआ तो SQL सर्वर इंस्टॉलेशन इज़ अ गुड चैलेंजिंग टास्क फॉर देम. बट इतना तो कर ही सकते हो, इतना तो करो, खुद के लिए करो, अपने जॉब के लिए करो, कुछ अच्छा कमाना है तो उसके लिए करो. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन आई कैन गिव, बट ये वाला मैंने उस दिन भी डाल दिया था. लेकिन सिंपली गूगल पे जाकर यहाँ पे सर्च कर लोगे ना तुम, ऑनलाइन SQL कंपाइलर, कंपाइलर बोलते हैं इसको, और एडिटर जो भी डालना है डालो, वो समझ लेगा, वो स्मार्ट है. तो जाके प्रैक्टिस करो. बाद में हमको क्वेरीज भी, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं. मतलब लिट कोड लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, थोड़ा प्रैक्टिस करके डाल दो ग्रुप पे कि मैंने ये किया वो किया. अगर किसी ने कुछ किया है तो भी ग्रुप पे डाल दो, ताकि किसी और को मोटिवेशन मिल जाए उससे, और वो कुछ कर ले. तो ओके, दैट इज all for today, guys. Okay, so we will conclude this operators for today, and I think we will see you tomorrow. If you have any question, guys, we will always cover the question in last 5 minutes, so that is will be reserved time for them. Okay, so if you have any question, please let me know, guys.